Hello students, I am going to teach you lesson 8 the hair on the moon. Hair means होता है खरगोश, moon means होता है चंद्रमा, चंद्रमा पर खरगोश. Let's start. A hare lived in a forest. He had two friends, a monkey and an otter. They spent a lot of time together. Hare means खरगोश, forest means one. He had two friends means मित्र. Monkey means बंदर. Otter means उदबिलाव. They spent a lot of time together. Spent means समय बिताना. Spend का सेकेंड फॉर्म है spent. A lot of time together, काफ़ी समय. A lot of time means काफ़ी समय, बहुत ज़्यादा समय. Together means एक साथ. So let's translate. A hare lived in a forest. एक खरगोश एक वन में रहता था. He had two friends. उसके दो मित्र थे. A monkey and an otter. एक बंदर और एक उदबिलाव. Otter means उदबिलाव. They spent a lot of time together. वे अपना काफ़ी समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते थे, समय बिताते थे. One day, a hermit came to the forest. He was very tired and hungry. एक दिन, one day एक दिन, hermit means साधु. A hermit came to the forest. एक साधु जंगल में आया. He was very tired and hungry. Tired means थका हुआ, hungry means भूखा. वह बहुत थका हुआ था और बहुत भूखा था. The otter was catching fish. The hermit went to him. I am hungry, he said. The otter was catching fish. Catch fish means होता है मछली पकड़ना. The otter was catching fish. उदबिलाव मछली पकड़ रहा था. The hermit went to him. यह हिम ऑटर के लिए इस्तेमाल किया गया है. साधु उदबिलाव के पास गया और बोला, मैं बहुत भूखा हूँ. I have few fish, said the otter. Please take them. But I don't eat fish, said the hermit. I have few fish. Few means होता है कुछ. said the otter. उदबिलाव ने कहा, मेरे पास कुछ मछली है. Please take them. कृपया इसे खा लीजिए. But I don't eat fish, said the hermit. साधु ने कहा, लेकिन मैं मछली नहीं खाता हूँ. Have you anything else? Sorry, said the otter. I have nothing else. तो इस पर साधु बोलता है, Have you anything else? क्या आपके पास कुछ और है खाने को? Sorry, said the otter. तो उदबिलाव ने जवाब दिया, Sorry, मुझे खेद है, मेरे पास और कुछ भी खाने को नहीं है. I have nothing else. मेरे पास कुछ भी और खाने का नहीं है. The monkey was eating nuts. The hermit went to him. Him यहाँ पर monkey के लिए इस्तेमाल किया गया है. The monkey was eating nuts. Nuts means होता है अखरोट. The hermit went to him. Monkey अखरोट खा रहा था. साधु उसके पास गया. जब monkey अखरोट खा रहा था उसी दौरान साधु उसके पास गया. I am hungry, said the hermit. और hermit साधु ने बोला, मैं बहुत भूखा हूँ. I am hungry, मैं भूखा हूँ. Could you give me some food please? साधु ने बोला, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो प्लीज़? I have few nuts, said the monkey. बंदर ने बोला, मेरे पास कुछ ही अखरोट है, कुछ ही नट्स है. Oh, but I want a lot of them, said the hermit. I am very hungry. I am sorry, I have only a few, said the monkey. I'll ask the hare then, said the hermit. I have few nuts, said the monkey. बंदर ने बोला कि मेरे पास कुछ ही अखरोट है. Oh, but I want a lot of them, said the hermit. I am very hungry. साधु ने बोला, ओह, लेकिन मुझे बहुत सारा चाहिए, मैं बहुत भूखा हूँ. I am sorry, I have only a few, said the monkey. I'll ask the hare then, said the hermit. मुझे माफ़ कीजिए, मेरे पास कुछ ही नट्स है,
बंदर ने बोला कि मेरे पास कुछ ही नट्स है, आपको ज़्यादा देने के लिए नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए। फिर साधु ने बोला ओके, फिर तो मुझे खरगोश के पास जाना पड़ेगा, मैं खरगोश से पूछूंगा। The hare was eating grass. The hermit went to him. I am so hungry, said the hermit. Please, could you give me some food? I have lot of grass, said the hare. But I don't eat grass, said the hermit with a smile. The hare was eating grass. खरगोश घास खा रहा था। The hermit went to him. साधु उसके पास गया और बोला मैं बहुत भूखा हूँ। I am so hungry, said the hermit. साधु ने बोला मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज़ could you give me some food? प्लीज़ कृपया क्या तुम मुझे कुछ भोजन दोगे, कुछ खाने को दोगे? I have lot of grass, said the hare. खरगोश ने कहा मेरे पास बहुत सारा घास है। ग्रास, ग्रास मीन्स घास, मेरे पास बहुत सारा घास है। बट आई डोंट ईट ग्रास, सेड द हर्मिट विथ अ स्माइल। इस पर साधु ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला लेकिन मैं घास नहीं खाता हूँ। हैव यू एनीथिंग एल्स? नो, आई एम सॉरी, सेड द हेयर। जब साधु ने खरगोश से पूछा हैव यू एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हारे पास कुछ और है खाने को? इस पर खरगोश ने बोला नो आई एम सॉरी, नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए। आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम टायर्ड, सेड द हर्मिट। साधु ने बोला मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। व्हाट शैल आई डू नाउ? अब मैं क्या करूँ? व्हाट शैल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ? द हेयर थॉट फॉर मोमेंट। वेट, ही सेड, प्लीज डोंट गो अवे। हेयर कुछ मिनट सोचा, कुछ पल सोचा और बोला वेट, रुकिए, प्लीज़ डोंट गो अवे, कृपया जाइए मत, रुकिए। द हेयर ब्रॉट सम वुड, ही स्ट्रक 2 stones together and made a fire. You can eat me, he said, and jumped into the fire. खरगोश ने कुछ लकड़ी लाया। सम वुड्स, वुड मीन्स होता है लकड़ी। खरगोश ने कुछ लकड़ी लाया। He struck 2 stones together and made a fire. Made a fire. Make a fire means होता है आग जलाना। So he struck 2 stones together. खरगोश ने 2 पत्थरों को लाया और आपस में उसको रगड़ा आग जलाने के लिए। And made a fire, और आग जलाया। You can eat me, he said, and jumped into the fire. और खरगोश ने उस आग पर कूदा और बोला यू कैन ईट मी, तुम मुझे अब खा सकते हो, या साधु जी आप मुझे अब खा सकते हो। बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम, ही लुक्ड आउट बट द हर्मिट वॉज नॉट देयर। एन एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, ही टुक द हेयर इन हिज आर्म्स एंड फ्लू अप। ही पुट हिम ऑन द मून, बट द फायर डिड नॉट बर्न हिम। बर्न मीन्स जलना, जलाना, लेकिन आग खरगोश को नहीं जलाया। यहाँ पर हिम का इस्तेमाल खरगोश के लिए किया गया है, हेयर के लिए किया गया है। ही लुक्ड आउट, वह लुक्ड आउट मीन्स, लुक आउट मीन्स होता है देखना, ढूंढना, खोजना। ही लुक्ड आउट, उसने साधु को खोजा। यहाँ पर ही का इस्तेमाल खरगोश के लिए किया गया है, हेयर के लिए किया गया है। खरगोश ने, हेयर ने साधु को ढूंढा। बट द हर्मिट वॉज नॉट देयर, लेकिन वहाँ पर साधु नहीं था। एन एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। इन फ्रंट ऑफ हिम का मतलब होता है के सामने। हिम, हिम मीन्स खरगोश के लिए किया गया है। एन एंजल स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और एक एंजल उस हेयर के सामने खड़ा हुआ था। He took the hair in his arms and flew up. एंजल ने, यहाँ पर ही का इस्तेमाल उस एंजल के लिए किया गया है। एंजल ने खरगोश को
अपने भुजाओं में पकड़ा और उड़ गया। ही पुट हिम ऑन द मून, उसने खरगोश को चंद्रमा पर रख दिया, चंद्रमा पर ले गया। लुक अप एट द मून, यू कैन स्टिल सी द हेयर ऑन इट। लुक अप एट द मून, चंद्रमा पर देखो। यू कैन स्टिल सी द हेयर ऑन इट, आप अभी भी चंद्रमा पर उस खरगोश को देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, if you look at the moon at night, you will find the hair.